So let's do some basic examples to understand the application of equation of motion under gravity. Okay, let's do some illustrations to know how to solve the basic type questions. And student, let this is a tower, okay, and this is ground, correct? A ball thrown vertically upward with a velocity 19.6 meter per second. Let for convenient you take it as 20 meter per second, correct? A ball is thrown vertically from the top of a tower. Okay, this is a tower with a speed of 20 meter per second. Okay, and it returns to the ground. The ball will move a path like this. It will go a certain height, then it will come back. Yes or no? It just came back, and it returned to the ground means it reached the ground at t is equal to 6 seconds. T is equal to 6 seconds. यहाँ से अगर हमने मोशन स्टार्ट किया t is equal to 0 से, so it reached at a time t is equal to 6 seconds. Correct? This much is given, and it is asking in the question find the height of the tower. Find the height of the tower. Find the height of the tower. Correct? First, I will let you know in such type of question what are the things in what way we have to deal. Then I will also say how to solve the total equation in one equation only, the total problem. Okay. So student, let this is the frame of reference level. To reach the maximum height, if I am throwing the body here, t is equal to 0, and after how much time it will reach the maximum height? How to know? Let this is the height. This is the maximum height it will reach, because after reaching this point, जो blue पे मैंने दिखाया ball की position, तो वहां से फिर क्या होना शुरू करेगा? उसके बाद फिर free fall होना शुरू करेगा. Yes or no? और इस लेवल पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा इसको? ये हम निकाल सकते हैं. Because if this is t is equal to 0, this is time of ascent. Time of ascent, this is, and this is time of descent, correct? And you know time of ascent is equal to how much? U by g, correct? U means मैंने 20 मीटर पर सेकंड में फेंका. Acceleration due to gravity nothing given. Let take 10. So then it will be how much? 2 seconds. That means अगर t is equal to 0 से उसने यहाँ से शुरू किया A पोजीशन से, तो उसको B पोजीशन पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स? 2 seconds. Is that clear to all? फिर टावर की सेम हाइट आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? To come to this position how much? That is time of descent. Time of descent is also U by G. That is also 2 seconds. Yes sir, this is also 2 seconds. That means जो टोटल 6 सेकंड जो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक A to B जाने के लिए उसको 2 सेकंड लगा, फिर B to C आने के लिए उसको 2 सेकंड लगा, फिर C to D जाने के लिए ग्राउंड पहुंचने के लिए उसको 2 सेकंड लगा. So this time interval is how much? 2 seconds. This time interval is how much? 2 seconds. This time interval is how much? 2 seconds. Correct? This is 2 seconds. This is 2 seconds. This is also 2 seconds. Yes or no? Get it? तो उसने पूछा है what is the height of the tower? How to find the height of the tower? Student, next second thing, let's see. How much is this height? ये जो A to B height is how much? A to B जो उसने move किया, what is the height for that? You know height is equal to how much for body thrown vertically upward? H max is equal to U square by 2G. Yes or no? That is U square by 2G. The U is how much? 20 into 20 by 2 into 10. Yes or no? So that is cancel out, then 20 meter. Then this height is 20 meter, students, correct? This to this height is 20 meter. मतलब जहां से हमने बॉल को थ्रो किए थे और वो जितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, वो डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर. द डिस्टेंस इज 20 मीटर. अंडरस्टूड? अभी एक बार अगर वो बी पॉइंट पे पहुंच बॉल, वंस द बॉल रीच टू पॉइंट बी, देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली. और फ्रीली फॉल करने के लिए जब हमने निकाल दिया कि सर ये तो टाइम 2 सेकंड लग रहा है, तो बाकी वो कितने टाइम के लिए फ्री फॉल करेगा? 4 सेकंड के लिए, क्योंकि टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड इज 6 सेकंड, और पहला 2 सेकंड उसने ऊपर तक पहुंचने के लिए ले लिया, तो बाकी जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है वो कितना है? 6 सेकंड. मतलब टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम बी टू डी इज हाउ मच? 4 सेकंड. बिकॉज ए टू बी पहुंचने के लिए उसने 2 सेकंड ले लिया. यस सर, नो, इट टुक 2 सेकंड्स टू रीच फ्रॉम ए टू बी. फिर बी टू डी आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड. और ऐसे भी 4, जब बॉडी फ्री फॉल करता है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली, जब एक बॉडी फ्री फॉल करता है, तो उसी टाइम पे h इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ जी टी स्क्वायर. करेक्ट? दैट मीन्स अगर मैं टोटल टाइम निकालूं, सो दैट इज हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर. यस सर, नो? सो दैट हाइट इज हाउ मच? हाफ इंटू 10 इंटू 4 का हाइट 16. करेक्ट?
So that is 5, that is 80 meter, correct or not? That is 80 meter. Understood student? So यहाँ से यहाँ तक B to D जो हाइट है, अभी जो B to D हाइट है जो उसने 4 सेकंड लिया, उसका डिस्टेंस कितना है 80 मीटर, बट उसने हाइट ऑफ द टावर पूछा है। क्या पूछा उसने क्वेश्चन में? हाइट ऑफ द टावर। तो क्या हम ये भी निकाल सकते हैं कि B to C का हाइट कितना होगा, क्योंकि B to C रीच करने के लिए उसको 2 सेकंड लगा है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस इन B to C? अगर हम B to C डिस्टेंस निकालेंगे, BC इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ इनटू G इनटू टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम B to C का स्क्वायर। सो दो वो कितना है, 2 सेकंड है, दैट इज हाफ इनटू 10 इनटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। सो दैट इज 5 इनटू 4 20 मीटर। यस सर नो? सो दैट मीन्स अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, सो दिस हाइट इज 20 मीटर, करेक्ट? ऐसे भी इसने 20 मीटर हम निकाल लेते हैं, चीज को यूज कर जी करके, जब फ्री फॉल कर रहा है वो भी 20 मीटर आ रहा है। यस सर नो? तो बाकी टोटल हाइट इज 80, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा फिर ना? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? 60. 80 minus 20, that is 60 meter. Understood? Then अगर हम height of the tower की बात करें, if I will be saying about height of the tower, अगर मैं height of the tower की बात करूं, that is 80 minus नीचे आने के लिए 2 सेकंड में गया 20, so that is 60 meter. Height of the tower is 60 meter, correct? ये एक लेंदी प्रोसेस पे हमने उसको सॉल्व किया। We can also solve all those equations in students in the same type of question. That I will be giving you another example. Student, there is a tower also here. Also there is a tower. Okay, there is a tower, and undoubtedly this is the ground. Okay, और हमने क्या किया है कि ये जो टावर है ना, यहाँ से ये टावर की हाइट उसने अभी दे रखा है 25 मीटर। ठीक है, ये जो टावर है इसका हाइट 25 मीटर है। अभी 25 मीटर ऊपर से मैंने इस बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड पे थ्रो किया, करेक्ट? कितने में थ्रो किया? 20 meter per second पे थ्रो किया। Ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second from the top of a tower, जिस टावर का हाइट है 25 मीटर, करेक्ट? और ये बॉल अभी ऐसा जाएगा, फिर वापस आके यहाँ पर पहुंचेगा। ये सर नो? करेक्ट और नॉट? तो स्टूडेंट ने पूछा है कि नंबर 1, हाउ हाई द बॉल विल राइज, हाउ हाई द बॉल विल राइज, how high the ball will rise, number 1. Number 2, how long will it be before the ball hits the ground? Means what is the total time of flight उसने पूछा है सेकंड में। उसने ऐसा पूछा है, how long will it be, how long will it be before the ball hits the ground, before the ball hits the ground, correct? Number 3 is these two things students you find, then we'll see. First, number 1 is how high it will go. That means h is equal to u square by 2g. Yes or no? If this is the height, let again I will be taking this is a point, यहाँ पर b point, and this is c point, and this is d point, correct? So now how high it will go? Semi directly, h is equal to how much? 20 meter. U square by 2g, that is correct. तो 20 पे फेंका मैंने, 20 into 20 by 2 into 10, that is how much? 20 meter, correct? Then उसने total time of flight पूछा है. This is total time of flight, yes or no? Total time of flight will be how much? So time of ascent 2 seconds, time of descent is also 2 seconds. So 2 to how much? 4 seconds. ठीक है, बट यहाँ से जब वो फ्री फॉल कर रहा है स्टूडेंट्स, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 plus 25, 45 ना? मतलब डिस्टेंस एस बी डी, बी टू डी आने के लिए जो डिस्टेंस है दैट इज हाउ मच? 25 plus 20, दैट इज 45 मीटर। यस सर नो? और 45 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, 45 मीटर आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम फ्रॉम दिस टू दिस साइड, फ्रॉम बी टू डी आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? दैट इज टी बी डी हमें निकालना होगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? देन 45, दैट मीन्स 45 that is equal to SBD, correct? Is equal to half GTD square. Yes or no?
So you put there 45 is equal to half into 10 into TD का square, correct? So that is 45 is equal to 5 TD square, yes or no? So TD square is equal to how much? 9 seconds. So TD is equal to how much? 3 second, correct? तो उसको कितना टाइम लगेगा पूरा नीचे आने के लिए? 3 सेकंड. यहाँ से यहाँ तक B to D आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड टोटल. और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा था उसको? 2 सेकंड. सो टोटल कितना टाइम के लिए उसने एयर पे रहा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हाउ मच? सेकंड बिट ऑफ द क्वेश्चन. T is equal to how much? 5 सेकंड ना? Yes, 7. और ऐसे भी आप देख सकते हो ये वाला जाने के लिए 2 सेकंड A to B, फिर B to C आने के लिए 2 सेकंड, तो फिर वापस C to D आने के लिए उसको 1 सेकंड लगेगा. तो टोटल टाइम इज 5 सेकंड. अंडरस्टूड और नॉट? Students, I'm giving you 3 cases. Right, student, this is the height of a tower, correct? This is h height, है ना? यहाँ से मैंने बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो किया ऊपर की तरफ, ठीक है? जब u वेलोसिटी में ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये इस तरह जाके फिर यहाँ पर आके पहुंचेगा ग्राउंड पे, करेक्ट? दिस इज द ग्राउंड, यहाँ पर आके पहुंचा. लेट उसने t1 टाइम लिया यहाँ पहुंचने के लिए, करेक्ट? फिर और एक टावर, उसी सेम टाइप की टावर, ठीक है ना? इस टावर में क्या किया हमने, वही h हाइट है, बल्ब को मैंने ऐसे थ्रो किया, ठीक है? u वेलोसिटी में नीचे की तरफ थ्रो किया. तो ये नीचे आके पहुंचने के लिए उसको लेट टाइम लगा t2. समझ पे आ रहा? नेक्स्ट सेम हाइट पे मैंने क्या किया, इस बल्ब को फ्री फॉल करवाया. फ्री फॉल मतलब समझते हो, u इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो उसको ग्राउंड आके पहुंचने के लिए t3 टाइम लगा, ठीक है? अगर मैं तीनों की इक्वेशन लिखूं, if I'll be writing the equation of the three, then what I will write? In this case, comparatively, you can write sir h is equal to ut2 plus half g t2 square. Correct or not? Yes or no, students? If I'll say you to write here, you can write also sir h is equal to u तो 0 है, तो h is equal to half gt3 square. करेक्ट? क्योंकि t3 टाइम लगा, है ना? बट यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? मैंने जैसे बताया था कि वी कैन राइट ऑल द इक्वेशंस इन वन फॉर्म, वेक्टर डाल के, क्योंकि बॉडी को मैंने यहाँ से थ्रो किया था ए पॉइंट से, बॉडी आके बी पॉइंट सी पॉइंट दे के आके डी पॉइंट पे पहुंच गया. तो फाइनली बॉडी कितना डिस्प्लेस किया? एच डिस्प्लेस किया ना? और उसने एच डिस्प्लेस करने के लिए टाइम कितना लिया? t1 लिया. इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u था. We have to make certain changes in this equation. Yes or no? So to write the equation in vector form, चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है? स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर मैं नीचे की तरफ चीजों को पॉजिटिव लिया तो ऊपर की तरफ चीजों को क्या लूंगा? नेगेटिव, करेक्ट? है ना? अगर मैं यहाँ से एक बॉडी को नीचे की तरफ थ्रो कर रहा हूँ तो आई एम थ्रोइंग डाउनवर्ड, सो यू आई विल टेक व्हाट? पॉजिटिव, करेक्ट? And if I'm throwing the body from the same height upward, then I can take you how much? Negative, depends, doesn't matter. ऐसा नहीं कि हमेशा नीचे की तरफ पॉजिटिव ऊपर की तरफ नेगेटिव लेंगे. ठीक उसी तरह भी अगर कोई ऐसा बोला कि सर नहीं मैं नीचे की तरफ को नेगेटिव ले लूंगा, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव ले लूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर एक बॉडी को यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है तो u विल बी इक्वल टू पॉजिटिव. अगर यहाँ से बल्ब को नीचे की तरफ थ्रो किया जा रहा है तो u इज इक्वल टू हाउ मच? नेगेटिव. यस और नो? करेक्ट और नॉट स्टूडेंट्स? थोड़ा चलो इक्वेशन ऑफ मोशन पे डाल के देखते हैं. सेकंड इक्वेशन पे मैं डाल के देखता हूँ. सेकंड इक्वेशन मतलब ये वाला केस जो मैंने बताया, ठीक है? ये था बॉडी ऐसा था और ये ग्राउंड था. मैंने एक बल्ब को क्या किया, यहाँ से नीचे की तरफ u में थ्रो किया, करेक्ट? और उसने टाइम जो लिया t2 टाइम लिया. सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, हाइट इज h. तो आप लोगों ने h इज इक्वल टू क्या लिखे सर? ut2 प्लस हाफ gt2 स्क्वायर, करेक्ट? है ना? तो इसका मतलब ये है कि हमने सारे चीजों को नीचे की तरफ जो है ना वो हमने पॉजिटिव ले लिए. ऐसे भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है, दैट इज पॉजिटिव. u को भी हम नीचे की तरफ थ्रो किए हैं, u इज पॉजिटिव, g इज पॉजिटिव. और हमने h भी नीचे की तरफ बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, h इज पॉजिटिव, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर.
अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में डाल दूं कि नीचे की तरफ सारे चीजों को मैंने नेगेटिव लिया, फिर भी कोई बदलाव नहीं आएगा इक्वेशन पे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने सारे नीचे वाले चीज को नेगेटिव लिए। तो इस इक्वेशन पे मैं ऐसे लिखूंगा अभी माइनस एच, क्योंकि नीचे की तरफ बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, नीचे की तरफ मैं नेगेटिव लिया हूं, माइनस यू जी टी टू, करेक्ट, माइनस यू, 1 मिनट, माइनस यू इंटू टी टू लिखूंगा। वाई आई विल राइट टी टू? क्योंकि सर नीचे की तरफ नेगेटिव लिया, वेलोसिटी इज डाउनवर्ड दिया मैं, और मैं नीचे की तरफ सारे नेगेटिव लिया हूँ, माइनस हाफ जी भी नीचे की तरफ नेगेटिव है, लिए हैं हमने, हाफ जी टी जी टी टू का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में कोई बदलाव है क्या? जस्ट एक माइनस मैंने दोनों चीज में मल्टीप्लाई कर दी, देयर इज नो मोर डिफरेंस इन दैट। इसी इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूं, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी थ्री स्क्वायर, तो फिर भी कोई दिक्कत है क्या? इस पे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस माइनस मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। तो इस दोनों को दिमाग पे रख के अगर मैंने ये वाला इक्वेशन आपको लिखने के लिए बोला, तो चलो मैं रिड्रा कर देता हूं थोड़ा इसको, नो प्रॉब्लम। और एक क्वेश्चन में जब आप ले रहे हो तो सारे एक लेना है, कैसा नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पहले हाफ को हम पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे, नीचे वाला फिर दूसरी सोल्यूशन की सेकंड हाफ में हम नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे, ऐसा नहीं, एक कॉन्सेप्ट को स्टिक करके रहेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन। अगर यहाँ पर मैं यू ऊपर की तरफ ले लिया और बॉडी ऐसे जाके फिर वापस से ऐसे आ गया, इट केम टू द सेम पॉइंट, और उसने टाइम ले लिया t1, करेक्ट, उसने कितना टाइम ले लिया, t1 टाइम ले लिया, और हाइट इज h, ठीक है। और बॉडी ऊपर की तरफ, यहाँ पर अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखूं, इफ नीचे की तरफ मैं नेगेटिव लेता हूँ, ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? यू ऊपर की तरफ था इनिशियली, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, प्लस, मतलब एच नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, सो इसलिए मैंने माइनस एच लिखा, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। यू ऊपर की तरफ है, तो इसलिए यू टी वन लिख दूंगा मैं, नो नो प्रॉब्लम। और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, तो इसलिए माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर लिख दूंगा, कोई कुछ भी गलती नहीं है इसमें। अगर यहाँ पर मैंने मतलब चेंज कर दिया कि नहीं सर मेरा मन कर रहा है मैं नीचे की तरफ नेगेटिव लूंगा, ऊपर की तरफ सॉरी नीचे की तरफ पॉजिटिव लूंगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव लूंगा, तो बस इस इक्वेशन में एक माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि अगर मैं एच के बारे में लिखूं, सो ऊपर की नीचे की तरफ पॉजिटिव है तो एच इज इक्वल टू, यू ऊपर की तरफ है, मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया बट यू इज अपवर्ड नेगेटिव लिया, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस यू टी टू टी वन, जी नीचे की तरफ है, हाफ जी टी वन स्क्वायर। सो दोनों इक्वेशन में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, बस मैंने यहाँ पर एक माइनस सिंबल मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल गया। समझ पा रहे हैं? बट थ्रू आउट द क्वेश्चन हमें एक ही कॉन्सेप्ट को स्टिक करके रहना होगा, एक ही इक्वेशन पे हम पूरा चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट, here for the three cases I can write three equations. फर्स्ट से लेट इफ आई एम टेकिंग, नीचे की तरफ अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ऊपर की तरफ अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो मैं तीन इक्वेशन लिख सकता हूँ उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसलिए मैंने माइनस एच लिखा। यू ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, तो इसलिए यू टी वन पॉजिटिव लिखा। जी नीचे की तरफ है, तो इसलिए माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, करेक्ट, लिख दिया हमने पहला वाला। दूसरा सेकंड इक्वेशन, ये इसका इक्वेशन हो गया, सेकंड में सब नीचे की तरफ है, तो इसलिए मैं माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड में सब नेगेटिव नीचे की तरफ पे लिया हूँ, करेक्ट। और यहाँ पर मैं थर्ड पे माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी थ्री स्क्वायर लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी अगर स्टूडेंट्स मुझे नाउ आई वांट टू फ्रेम ए रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3, ठीक है, तीनों में कितना व्हाट द रिलेशन विल बी देयर, ठीक है। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज ऐसे लिखते हैं, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, करेक्ट। उसके साथ स्टूडेंट्स में क्या करता हूँ, लेट मी टू मल्टीप्लाई T2 विद द इक्वेशन, ठीक है। मैंने ऊपर की इक्वेशन के साथ T2 मल्टीप्लाई किया, T2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, सब में T, तो मतलब माइनस एच T2 है ना, इज इक्वल टू U इंटू T1 T2, करेक्ट, माइनस हाफ जी T2 इंटू T1 का स्क्वायर, करेक्ट। ये इक्वेशन 1 लिख दिया हमने, ठीक है।
और अभी इसी इक्वेशन के साथ स्टूडेंट्स मैंने एक t1 मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा देखो, माइनस एच टी वन इज इक्वल टू माइनस यू टी वन टी टू माइनस हाफ जी टी, मैंने t1 मल्टीप्लाई किया है ना, तो मैं t1 लिखूंगा हाफ जी t1, और पहले से t2 का स्क्वायर था रख दिया हमने, और ये बन गया इक्वेशन 2, है ना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दोनों इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। सो अभी अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इफ आई ऐड बोथ द इक्वेशन, तो आई थिंक ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस है ना। और माइनस माइनस अगर मैं ऐड कर दूं तो माइनस एच इज इक्वल टू हाउ मच, कॉमन लेने से t1 प्लस t2 हो जाएगा, ये सर नो, मैंने माइनस एच कॉमन ले लिया, करेक्ट, इज इक्वल टू माइनस हाफ जी t1 और t2 अगर मैं कॉमन ले लूं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ऊपर से अगर मैं t1 कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा अंदर पे, ओनली t1 विल बी देयर, ठीक है। और नीचे पे t1 t2 दोनों कॉमन ले लिया तो प्लस t2 विल बी देयर, ठीक है। मैंने ऐड किया, माइनस सिंबल को कॉमन लिया, लेने के बाद माइनस हाफ जी t1 t2 और यहाँ पर t1 t2 कर दिया अंदर में, ठीक है। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा अनडाउटफुली। सो दैट इज माइनस एच इज इक्वल टू क्या मिला हमें, माइनस हाफ जी t1 t2, करेक्ट, ये हमें मिल गया अभी दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करके। और थर्ड वाला इक्वेशन के साथ हमें रिलेट करना है, वो कितना है, माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एच जी टी थ्री स्क्वायर, वी कैन एबल टू सी हियर, yes or no, so that we can write minus h is equal to minus half g t3 square, yes or no, correct। so दोनों का कंपेयर कर दो, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो वी कैन राइट माइनस कैंसिल करके हम लिख सकते हैं माइनस हाफ जी टी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी वन टी टू, करेक्ट, हाफ जी कैंसिल कर सकते हैं, सो दैट इज टी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन टी टू, है ना। So T3 is equal to how much, students? Root over of T1, T2. Correct. Understood, students? I think you got it. Just ask me the doubts, which part you are having.